and I saw tears rolling down my father's eyes. I was like, oh my god. मैंने कहा क्या ये कोर्स करना ज़रूरी है? भोपाल से हो जाएगा, वापस चलते हैं. And Bombay University was a grilling course. I know आपको grilling का मतलब पता है. You've crossed one of those toughest exams in the country and you're going through a grilling process yourself. सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होती थी up till 6 in the evening. ऐसा लग रहा था नौकरी करा रहे हैं. And other people out there used to think अरे बॉम्बे में हो मज़े करो. तो ऐसा नहीं था कि हम असाइनमेंट मरीन ड्राइव पे बैठ के कंप्लीट नहीं करते थे. I realized after a while मैंने कहा कि यार क्या करना है. मैंने कहा I really wanted to go back home. कि मैं वहाँ जाके कर लूँ क्या ये कोर्स वापस से. I could take admission in any other college and I can stay home. That's when I realized that how proud my parents were to tell other people that I've got an admission in the university teaching department of Mumbai University. I said अब तो मैं डिग्री लेके ही जाऊँगी यहाँ से. That I saw my father breaking down a little. Last year दशहरे वाले दिन की बात है. My grandmother fell घर में. She was 95. She had completed 95th birthday on last September. She fell in the house. She had a little crack on her upper femur. पर उसके अलावा सब ठीक था. वो हल्के से क्रैक के अलावा बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं आई थी. Our family doctor was out of town. He came back 2 days later. एक्सरे हुआ, सब समझ में आया. जो भी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, she was at home. Long story short, she had stopped eating eventually. Bedridden हो गई थी. उन्होंने धीरे-धीरे खाना छोड़ दिया था. 16th of January we lost her. We could see that she was getting weak day by day. We maybe knew that something like this was coming up. And one fine day, when we saw that that she wasn't moving at all, we understood, but still we wanted our doctor to come. So the doctor came around 10:30. He confirmed around 11. And all in the world I was worried about was my father. My grandmother was 96 running. My father is in his late 60s. The first thing that after the doctor confirmed was, the first thing that he looked at me and he asked was, "Kitni baje?" I said 4 o'clock. One of my बुआ was at home. Another had to come from Indore. मैंने कहा इतना दूर नहीं है. Let's do it at 4. शाम से पहले हो जाएगा. And we were all very composed कि नहीं बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें उस दिन करनी होती हैं. Just trying to be maintaining our peace. I did everything with my father that day. घर से लेके funeral ground तक जो भी कुछ whatever my father was doing, I was along. मैं ही नहीं बता रही हूँ कि मैंने कोई बहादुरी का काम करा. सिर्फ इसलिए बता रही हूँ because I wanted to hold my father's hand throughout. कुछ लोगों को लगा भी घर से निकलते में कि अरे बेटियाँ नहीं जाती या क्या कैसे how why and everything. My father said no other word. She's coming along. That's finished. उसके बाद कई बार, ये जनवरी की बात है, उसके बाद कितनी बार मैंने होली पहला त्यौहार आया, कई बार जब बाहर से लोग मिलने आए, and I saw my father breaking down. Very honestly, सारी साइकोलॉजी किताबों में रह गई थी. So हम इक्वालिटी का झंडा लेके बहुत बार आ जाते हैं सड़कों पे. हम इक्वल नहीं हैं. Males and females are not equals and we should not try to become equals. उठते हैं. जिंदा है. डिपार्टमेंट के लिए. क्यों उठते हैं आप सुबह? बच्चों के लिए. टिफिन लगाने के लिए. और बताइए. पीछे वाले बेचारे उठते ही नहीं. उन्होंने सबके जवाब में हाँ मिला दिया. नए दिन की शुरुआत के लिए एक बहुत स्पॉन्टेनियसली जवाब आया था. क्लास के लिए, काम के लिए, बच्चों के लिए, टिफिन लगाने के लिए. क्या ये वजह है आपके सुबह उठने की? क्लास तो जाना ही है, प्रोफेसर को काम पे तो आना ही है.
क्या डीन सर आपके घर आए थे जब आप 12th में थे हाथ पकड़ने कि मेरे ही कॉलेज में आना पढ़ने? आपने एग्ज़ाम दिया, आपने इंटरव्यू दिया, आपने मेहनत करी, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका बहुत हार्ड वर्क है। लाइकवाइज फॉर योर टीचर्स ऑल्सो, मेहनत करके एग्ज़ाम इंटरव्यू सब दे के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये तो करना ही है। क्लास आने के लिए अगर सुबह उठ रहे हो, नौकरी पे जाने के लिए अगर सुबह उठ रहे हो, बहुत बड़ा कमाल तो नहीं कर रहे आप कि कर रहे हैं। ज़िंदगी में सुबह इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कॉलेज जाना है, नौकरी पे जाना है, या कुछ और वजह होनी चाहिए। एवर हर्ड ऑफ ओकिनावा आइलैंड? ओकिनावा आइलैंड के बारे में कभी सुना है? ये जापान का एक आइलैंड है जिसपे एक रिसर्च हुई है जहाँ पाया जाता है कि लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि जाके पता करा जाए कि ऐसा क्या हो रहा है वहाँ। कुछ 2-3 चीज़ें पता चली। नंबर 1, वो लोग सोशल ग्रुप में पैदा होते हैं और हमेशा उस सोशल ग्रुप का हिस्सा बने रहते हैं। नंबर 2, उनका जब 80% पेट भर जाता है तो वो खाना रोक देते हैं। नंबर 3, वो अपनी एक ना एक हॉबी, एक इंटरेस्ट को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। उस चीज़ से वो कभी रिटायर नहीं होते। आई एम श्योर ऑफिशियली रिटायर होने की एक एज होती होगी। एक 99 आई थिंक 100 ईयर ओल्ड एक मार्शल आर्ट्स टीचर है, वो कहते हैं मुझे रोज़ सुबह ये चीज़ उठाती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, लोगों को ये मार्शल आर्ट्स की गेम्स, ये टेक्निक सिखानी है। 101 ईयर ओल्ड आई थिंक अ फिशरमैन, वो मछली पकड़ने वाले ने इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में और कमाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे ये स्किल इतने अच्छे से आती है, मुझे इतनी खुशी मिलती है नदी तालाब किनारे जाना, मछली पकड़ के लाना फॉर माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, दैट दिस इज़ वॉट मेक्स मी गेट अप इन द मॉर्निंग, दिस इज़ वॉट हेल्प्स मी स्माइल, दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स मी अपबीट इन लाइफ। अब बताइए, आपके पास कोई और काम से हटके वजह है सुबह उठने की? नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सोनपार है। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं पीएचडी कर रही हूँ हैप्पीनेस में। लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिनके आपसी रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के स्केल पे ज़रा ज़्यादा स्कोर करते हैं। इन शॉर्ट लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बिना मतलब भी दूसरे से बात करते चलिए, बिना किसी कारण के भी दूसरे को फ़ोन करते चलिए पूछने के लिए कि आप कैसे हैं। साइकोलॉजिस्ट हूँ। कई लोग पूछते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में फ़र्क है। डिप्रेशन की आजकल लोग बहुत बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन हो गया, पेरेंट्स ने कुछ चीज़ नहीं दिलाई, किसी एग्ज़ाम में बैठे थे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, कोई घर में डांट पड़ गई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द सोसाइटी कि हम ये समझें कि हर एक व्यक्ति की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ज़रूरी है। स्पेसिफिकेशंस में बात करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आज आप, मैं और हम सब मिलकर एक समाज के तौर पे एक दूसरे के लिए ये समझें कि अच्छा बुरा सबको लगता है, रोना सबको आता है, दुख सबको होता है, खुशी सबको होती है। अगर कोई व्यक्ति परेशान दिख रहा है या ओवरवेल्म दिख रहे हैं, ट्रबल दिख रहे हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़ के पूछ लीजिए कि आप कैसे हैं। अगर वो व्यक्ति ना बताए कि नहीं जी कोई बात नहीं, सब ठीक है, फोर्स मत कीजिए, पर दूसरा सेंटेंस ये ज़रूर बोल के आइए कि अच्छा अगर कोई बात हो तो मैं हूँ। इतना भरोसा दिला के आइए कि आप हैं उनकी बात सुनने के लिए। तो हम कुछ सुसाइड के केसेस रोक सकते हैं, हम कुछ सेल्फ हार्म के केसेस रोक सकते हैं, और हम एक मैसेज स्प्रेड करेंगे समाज में कि हम सब हैं एक दूसरे के लिए। और अगर हम सब जब तक साथ हैं, प्रॉब्लम्स अपने आप कम होंगी। मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है, पेशेंस कम हो गया है, टॉलरेंस कम हो गया है और उम्मीदें बढ़ रही हैं। एग्ज़ाम में बैठते हैं, सोचते हैं एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाए। और मैं ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन जो देखने मिल रहा है आजकल समाज में कि पेरेंट्स और टीचर्स बस पढ़ो पढ़ो पे फोकस कर रहे हैं। सुबह से छोटा बच्चा है, उसको घर पे कोई आए, हम नमस्ते कहना नहीं सिखा रहे, लेकिन स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है, 90% नंबर लाने हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं। वो बच्चा दोस्त बनाने में फोकस नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहा है। और अगर मान लीजिए वो पढ़ते पढ़ते जो उसका एम है अगर वो नहीं पूरा कर पाए तो वो बच्चा तब निराश होता है। उसे लगता है अब मैं कहाँ जाऊँ दुनिया में, प्लान बी की तैयारी करी नहीं। सो प्रोफेशनल लाइफ में कई जगह लोग कहते हैं वर्क एंड लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा, वहाँ परेशान होते हैं, सोचते हैं इतनी मेहनत करके इतना बड़ा हमें जॉब मिली है, कॉलेज में पढ़े, इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, पर तो भी खुश नहीं है, कहीं सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये चीज़ें बहुत देखने में। लोगों से मिलते चलिए, बातचीत करते चलिए,
चाय समोसे पे मिलते चलिए, एक दूसरे से गप्पे मारते चलिए, कोई ना कोई होगा जिससे आप अपने मन की बात कह पाएंगे। काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भले ही सामने वाला आपसे ये ना बोले कि देखा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, पर बातों बातों में कई बार एडवाइस मिल जाती है। इंसान को ये भरोसा आता है मन में कि हाँ मेरी बात किसी ने सुन ली, किसी ने कहा मैं हूँ, डरना मत, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। करुणा सिंह, प्रोफेसर एंड हेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। आज हमारे इंस्टीट्यूट में श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में डीन सर की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम कार्यशाला मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए है। बेसिकली आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका स्ट्रेस कैसे रिलीज़ हो, ये स्ट्रेस रिलीज़ करने में लाभदायक होगा। इसके लिए लगभग 50 स्टूडेंट, 50 से ऊपर ही हो गए हैं, ये स्टूडेंट लाभान्वित होंगे। बाहर से हमारे यहाँ से ये बहुत मशहूर हैं प्रवक्ता डॉक्टर प्रिया सोनपाल, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, जो स्टूडेंट को कैसे अपन स्ट्रेस से दूर रहें, कैसे अपन उसको रिलीज़ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करा रही हैं, कुछ टॉक दे रही हैं। डिप्रेशन तो देखिए किस तरह किसी भी पर्पज़ से आ सकते हैं। आपको डॉक्टर्स का तो ख़ास तौर पे बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, प्रॉपर नींद भी नहीं हो पाती। ये बेसिकली पीजी स्टूडेंट हमारे ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी ड्यूटीज़ बहुत हैवी होती हैं, फिर पढ़ना भी बहुत रहता है, पेशेंट्स का भी लोड रहता है। तो ये सारे डिपेंड करता है कि आप हर स्टूडेंट अलग अलग टाइप से स्ट्रेस लेता है। कुछ थोड़े बहुत स्ट्रेस से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग थोड़ी बातों में स्ट्रेस ज़्यादा लेते। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। आजकल के उसमें तो हर पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो ये सभी के लिए लाभदायक है। जैसे जितने डॉक्टर्स और भी स्टूडेंट्स के अलावा जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक है कि हर तरह के पर्सन को स्ट्रेस रिलीज़ करता है। हमारे यहाँ तो डिपार्टमेंट ही है, साइकेट्री डिपार्टमेंट, जिसकी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर निमिषा मिश्रा मैम हैं। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में आप संपर्क कर सकते हैं।